بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is respect and obedience to teachers. ہمیں کتنا obedient رہنا ہوگا اور ہمیں کتنا respect دینا ہے اپنے teachers کو، اسی کے بارے میں اینڈ دیٹ ٹو ان اسلامک اسٹڈیز. جو دین اسلام ہے اس میں تو بہت ہی اہمیت ہے ایک ٹیچر کی. ان اسلام we must respect our elders in all situations. We can never behave badly towards them and must always speak to them in a kind and a gentle manner. Our teachers have a special place. They give us a very special gift called knowledge and ilm. This gift brings us closer to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. دین اسلام جو ہے اس میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ یعنی اپنے ایلڈرز جو بھی ہوں گے آپ کو اپنے سوسائٹی میں اپنے گھر میں، ان کے ساتھ آپ کو کیا ہے بڑے نرم لہجے میں بات کرنی ہوگی. ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بہت ہی استوار ہونی چاہیے. اور اب اس میں خاص کر آتا ہے یور ٹیچر، تو اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے آپ کے سامنے ہمارے دین اسلام میں. اور کیونکہ یہ ٹیچر ہی ایک ایسی ذات ہے دنیا میں جو ایک انسان کو علم سے بہرور کرتا ہے، یعنی علم کی نالج دیتا ہے اس کو، اور اسی نالج کی بنیاد پر ایک انسان جو ہے اپنی زندگی آگے چلاتا ہے، اور ایک انسان جو ہے غلط اور جو صحیح ہے ان دو کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. سو دس از دا گفٹ ایکچولی، یہی جو ہے گفٹ ہے فرام آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی، جس گفٹ سے ہم رب کو پہچانتے ہیں، رب کے ہم بہت نزدیک اس سے ہو جاتے ہیں. سو اس اعتبار سے جو اگر ہم دیکھیں گے دین اسلام، اس میں بہت ہی اہمیت ہے ٹیچر کی. تو اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دا بیسٹ آف ٹیچرس were the prophets, and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the last of these great teachers. سارے پیغمبر جو رب العالمین نے جو مبعوث فرمائے وہ تو سارے ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے اپنے قوموں میں، اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین استاد، عظیم ترین معلم، جنہوں نے خود فرمایا ہے انما بعثت معلما، مجھے مبعوث کیا گیا ایز اے ٹیچر، گریٹ ٹیچر. ہی ہمسیلف سیڈ آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر، مجھے تو مبعوث ہی کیا گیا ہے ایز اے ٹیچر، یعنی معلم اعظم ہم کہتے ہیں اس سے، دا گریٹسٹ ٹیچر آف دس یونیورس. ہی ٹاٹ اس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ گائیڈڈ ہیومینٹی ان آل فیلڈس آف لائف. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا چیز ایسے چھوڑا ہے جس میں انہوں نے ہمیں گائیڈنس نہیں کی ہے؟ تو سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ٹیچر، سب سے بڑے استاد جو ہمارے ہیں وہ تو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کے بارے میں قرآن کریم میں بھی بہت جگہوں پر رب العالمین نے ہم سے وہ جو کہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیا رب کریم نے، وہ تو بہت ہی بڑا فیور ہے انسانوں کے لیے، بہت ہی بڑا فیور، یعنی اس سے اور کوئی فیور نہ کیا تھا اور نہ وہ اب فیور ہو سکتا ہے. تو اسلام ہیز پیڈ considerable attention to teachers for being the first stone in the making of a nation. A student should respect his or her teacher. He or she should always observe humbleness with his teacher. Knowledge cannot be acquired except through humbleness. And patience and humbleness with teacher is Quranic attitude. اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھنا اور اپنے استاد کے ساتھ بڑے عزت و عافیت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں دین اسلام میں یہ
इस पे बहुत जोर दे दिया गया है, और हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए कुरानिक एटीट्यूड। और ये इज्जत जो रेस्पेक्ट करना है, ओबीडियंट रहना है टीचर का, ये तो सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास दीन इस्लाम की तालीम हो, जिसके पास कुरानिक एटीट्यूड पता हो क्या हो। कुरानिक एटीट्यूड में इससे पहले भी आपको समझा चुका हूं। कुरानिक एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि पैगंबरों ने दुनिया में जिस तरीके से वो तालीम दे दी अपने 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 अक़वाम को, तो उन्होंने फिर उस टाइम कौन सा तरीका अख्तियार किया। या हमारी कुरान करीम में एक जो है एक आम एग्जाम्पल, जो आमतौर पर भी लोगों को जो वो ना उनके पास वो उनको पता होता है, वो उनके पास पहुंचाई गई है वो चीज़ें, कि हमारे मूसा नबीना अलैहिस्सलाम जब हजरत खजर साहब के साथ जब होते है वो, तो उसके बाद वो जब उन्हें कहते हैं कि आप सब्र कीजिए, आपको सिर्फ देखना है कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या दिखाऊं आपको। तो वहां पर फिर भी पता चलता है हमें कि मूसा साहब जब बार बार उसे बोलने उठता है, फिर कहता है, हजरत खजर कहता है उससे कि आप मैं नहीं बता दूंगा आपको। फिर कहता है नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं अब सब्र करूंगा, मैं पेशेंट रहूंगा आपके कहने पर। तो यानी उस्तादों की बातों को हमें बड़े कंसंट्रेशन से लेना होगा, उनके चीज़ों को सुनने की हमें वो आदत डालनी होगी। तो मैं वो जो है वो कुरानिक एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि हम जो है हम अपने उस्तादों की बातें सुने, और उन्होंने वो जो हमें तालीम देते हैं, तो उस पर चलकर हम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ गामज़ान हो जाएंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे बड़ा टीचर, सबसे अफजल टीचर, मुअल्लिम अज़म आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जितने सारे बाकी टीचर्स हमारे हैं, हमें उनका भी वो जहन में रखना चाहिए कि हम किस एतबार से, एक मुसलमान जो होता है उसके लिए तो हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस है दीन इस्लाम में। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे चीज़ें कही है इल्म के बारे में, जिससे हमें ये वो इन्फर हो जाता है उन अहादीस में से कि कितनी इज्जत और कितना वो एहतराम देना होगा हमें अपने टीचर्स को। तो उनका एक फरमान है, seek knowledge and train to be dignified and calm while seeking knowledge, and humble yourselves with those whom you learn from. हमें नॉलेज को, हमें इल्म को ढूंढना होगा, अपने आप को ट्रेन करना है डिग्निफाइड बनाने के लिए, लेकिन इस चीज को while seeking knowledge, इस इल्म को हासिल करने के लिए हमें हम्बल रहना होगा, और खास तौर पर हम्बल हमें उनके सामने रहना है जिनसे हम इस नॉलेज को अटेन करते हैं, और वो कोई नहीं है, नन अदर देन आवर टीचर्स। और एक सेइंग है हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 3 types of people would not be mocked except by a hypocrite, an old Muslim man, a knowledgeable person, and a just leader. फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 किस्म के लोग हैं, उनको कोई मौकरी उनकी लिए नहीं कोई करेगा, यानी उनको मजाक नहीं करेगा कोई, उनका मजाक नहीं कोई कर सकता है, एक्सेप्ट वो कर सकता है जो मुनाफिक होगा। और वो 3 लोग कौन है? एक वो है एन ओल्ड मुस्लिम मैन, जो बूढ़ा कोई इंसान होगा, एंड सेकंड ए नॉलेजेबल पर्सन, जिसके पास नॉलेज होगी उसकी मौकरी, एंड ए जस्ट लीडर, और जो होगा लीडर जो होगा वो इंसाफ पसंद लीडर होगा। इन 3 इंसानों की वो मौकरी, यानी इनका वो मजाक कोई नहीं उड़ा सकता है दुनिया में, सिवाय वो जो मुनाफिक होगा। यानी इस चीज से हमें इस चीज की अहमियत को देखना है हमें, कि कितना हमें एहतराम करना होगा उन टीचर्स का, उन आलिमों की कितनी हमें कदर करनी होगी जो नॉलेजेबल होते हैं, जो जानते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है। और एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें वो फरमाते हैं, ओ अल्लाह, do not let me reach a time during which scholars are not followed and honorable people are not respected. ओ अल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे उस वक्त तक आप ना रखे जब दुनिया में स्कॉलरों को, टीचर्स को नहीं फॉलो किया जाएगा, एंड ऑनरेबल पीपल आर नॉट रेस्पेक्टेड, और जो इज्जत वाले लोग होंगे उनकी इज्जत नहीं की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि कितनी अहमियत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने से नजात मांगते थे जिस जमाने में टीचर्स की बेहुरमती हो जाएगी, जिस जमाने में इल्म वाले लोगों का नहीं माना जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों,
माय स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको पूरी तरह से अपने दिलों और दिमाग में रखनी चाहिए कि किस तरीके से हमको खराब किया जाता है दुनिया में, हमें कामयाबी क्यों नहीं होती है दुनिया में, हमें प्रॉब्लम्स का, मसाइबों का वो सामना क्यों करना पड़ता है. दिस इज द रीजन. आपके सामने है ये चीजें. यू कैन थिंक अपॉन these ahadith. तो आपको जो और एंड कीप करंट इश्यूज अंडर कंसिडरेशन, और इन अहादीस को सामने रखकर देखिए आपके मसले का, आपके सवालों का जवाब मिलेगा इसमें कि हम क्या करते हैं, हमें क्यों ये प्रॉब्लम्स हो जाती है. देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस, अजीम तरीन सहाबा जो थे, वो तो इस इज्जत के वो मतलब समझे माने जाते हैं, महवर माने जाते थे भी और है भी वो माने. उन्हीं की वजह से तो हम आज जो है हमारे पास सब कुछ है. तो इसमें एक अजीम तरीन सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम है अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अजीम तरीन सहाबा. He had given a full and complete advice concerning the respect and obedience of the teacher upon his student. He said, उन्होंने कुछ बातें फरमाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें पहली बात जो है, वन इज ग्रीट योर टीचर विद ए स्पेशल ग्रीटिंग. आपको सलाम तो करनी ही होगी, सब हम सलाम करेंगे एज ए मुसलमान, लेकिन टीचर को जब सलाम करोगे तो बड़े हिसाब से आपको करनी होगी. दूसरी बात जो है कि उन्होंने फरमाई, सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड डू नॉट पॉइंट विद योर हैंड इन हिज प्रेजेंस. इसके सामने आप जब बैठोगे तो डू नॉट पॉइंट विद योर हैंड इन हिज प्रेजेंस. इसके सामने आप अपने हाथ से किसी की तरफ इशारा नहीं करना होगा आपको. इसी तरह तीसरा पॉइंट ने बताया, डू नॉट विंक विद योर आईज नॉर कोट समवन एल्स हु सेड अपोजिट ऑफ व्हाट ही सेड. इसके सामने आप आंखों से कोई इशारा ना करें. इसके सामने आप कोई ऐसी बात ना कहे जो ये बात इसने, अब अगर टीचर आपके सामने कोई बात कहता होगा तो कोई अपोजिट बात अगर आपको पता है किसी और की, डोंट कोट दैट पर्सन. इसी तरह इन्होंने और एक बात फरमाई, डू नॉट बैक बाइट एनीवन इन हिज प्रेजेंस. अपने उस्ताद के सामने आप किसी की गैबत ना करो. डू नॉट हंट फॉर हिज फॉल्ट्स एंड इफ ही मेक्स अ मिस्टेक एक्सेप्ट हिज एक्सक्यूज. और आप ये ना देखिए कि मैं इस टीचर का ज्यादा इसका कोई वीक पॉइंट में ले लूं ताकि फिर इसके बाद आप उसके वो फॉल्ट निकालने की कोशिश करेंगे. और अगर आपके टीचर को कोई मिस्टेक होती है, एंड इफ ही मेक्स अ मिस्टेक एक्सेप्ट हिज एक्सक्यूज, फिर उसके बाद जब वो कहता है, अगर वो सॉरी कहेगा तो एक्सेप्ट दैट. डोंट से नो व्हाई सर, व्हाई डिड यू दिस डू दिस एंड डू दिस. नहीं, आपको उस वक्त सॉरी कहना होगा. इस तरह पॉइंट छठवीं बात जो ने फरमाई, डिग्निफाई हिम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड इफ ही नीड्स एनीथिंग रश बिफोर एवरीवन टू सर्व हिम. अपने उस्ताद को डिग्निफाई जो करना है, फॉर द सेक ऑफ, अगर उस्ताद के बारे में आप कुछ बोलेंगे भी तो से दैट फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. और रश बिफोर एवरीवन टू सर्व, अगर उसे कुछ किसी चीज की जरूरत है तो आप जल्दी जाओ उसके लिए, वो जो उसको कुछ जरूरत होगी तो उसे आपको देना होगा. इसी तरह और एक पॉइंट जो बताया उन्होंने, डू नॉट विस्पर इन हिज प्रेजेंस एंड से सॉरी टू हिम इवन योर फॉल्ट इज सो स्मॉल. उसके सामने आप कानाफूसी ना करें, इधर उधर की बात आपको नहीं करनी. क्लास में कोई और चीज की बात आप करते हैं, और अगर कोई फॉल्ट आपसे होता है, कोई स्मॉल फॉल्ट भी होता है, तो से सॉरी टू हिम. तो ये हमारे सहाबा का वो दस्तूर था, सहाबा का तरीक था. हमें हमारे उस्तादों के साथ वो कैसे रहते थे. तो रब से दुआ है कि वो हमें भी ये तौफीक अता बख्शे, हम अपने उस्तादों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहे.